So today we are in lecture number 8 of chapter 2, that is First World War and Russian Revolution. Now see children, I have explained you almost each and everything connected to First World War. Why First World War took place? What was the result? What was the principles behind fighting that war? What was the consequences after war? How each and every country, socially, politically, economically, got ruined? Because you see children, in war, there is never a victory. बच्चों एक ध्यान रखना, युद्ध में कभी किसी की जीत नहीं होती है। हमेशा युद्ध में हार ही होती है। हम बोलते हैं युद्ध लड़ा गया, इसने जीता। मेरे कहने का मतलब आप समझो, कहीं भी वॉर होता है, कहीं भी युद्ध होता है, दोनों तरफ से कई जाने जाती है। कई माँ अपने बेटे को देती है, कई बहनें अपने भाई को होती है, कई बच्चे अपने पापा को होते हैं, कई वाइफ अपने हस्बैंड को होते हैं। ये कहाँ की जीत हुई? आप मेरे को बताओ चलो, इसमें कहाँ हम जीत बोले? जो भी देश युद्ध में है, वॉर में है, और उसने जीत हासिल की, लेकिन वो जीत की उसको कीमत चुकानी पड़ती है। वैसे ही जीत नहीं मिलती, उसको वो कीमत चुकानी पड़ती है समझ में? तो ऐसा बन सकता है। Now in previous lecture I told you about factors responsible for First World War. Let us quickly revise that factors, then we will switch over to our 8th lecture. Basically the factor which was primarily responsible for First World War was Sedan War. मैंने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था, बराबर है? Sedan War was the most important factor which was responsible for war. Sedan War में जब फ्रांस और जर्मनी ने लड़ाई की, जब जर्मनी जीता, तो फ्रांस पे उन लोगों ने इतनी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साइन करवाई, जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट 1871 में। तो उस वक्त ऐसा लगता था कि अगर भविष्य में कुछ हुआ तो फ्रांस इसका बदला जरूर देगा, और ठीक ऐसा ही हुआ। सीडन वॉर के बाद जर्मनी गॉट अ राइज, बिकॉज 17th, 18th, 19th century was dominated by French and British. They have spread out colonies worldwide. They started to exploit, they sold their material, and they made an enormous profit. They created an enormous wealth by exploiting their colonies. So Germany was jealous of it, because you see, in whole geographical discovery part, you will never come across the word called Germany. Because at that time Germany was fragmented. Germany was not unified. But after unification, and then after King William Kaiser coming to throne, he was overambitious. It was in his mind clearly stated that Germans are made to rule the world. He wanted to wipe off the map of Europe, and instead of that, he wanted to create the map of Germany.
जर्मनी की लालसा इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इतनी ग्रीड बढ़ गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। अभी तक जो फ्रांस और इंग्लैंड के हाथ में जो कॉलोनीज थी, जिसपे वो हुकूमत कर रहे थे, राज कर रहे थे, आज पहली बार उन लोगों को जर्मनी का थ्रेट मिला, जर्मनी से कंपटीशन मिला। राइट, जर्मनी स्टार्टेड टू कम्पीट with England and France in their colonies by producing cheaper goods and selling at low rates and all these things. And simultaneously, the business which was generated by France and England in previous time was turned towards Germany. And that is why bitter rivalry started between Germany and France and England. Economic factor. Then came to militarism. Because whatever was earned, some part of that expense, earning, was transferred to weapons. At that time, according to that technology, new weapons were made, invented. Weapons doesn't mean war, but it creates the intensity of war. Right? तो जर्मनी ने जब मॉडर्नाइजेशन शुरू किया अपनी आर्मी के लिए, और इतना स्विफ्टली वो आगे बढ़ता गया, तो दूसरे देशों को भी उसकी भनक लगी, डर लगा कि जर्मनी डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होता है, अगर कुछ जर्मनी ने किया तो हमारा क्या? हाउ कैन वी सेल्फ डिफेंड आवरसेल्फ अगेंस्ट दिस जर्मनी? And that is why weapons based development Europe. First part. Secondly, Italy, Germany, Japan, they made military training compulsory for their children in their nation. So instead of industrialists, businessmen, sports person, etc., etc., from the childhood they were training soldiers. And extreme militarism developed in this nation. And because of this militarism, other nations also joined this bandwagon, this race. क्योंकि एक करता है तो दूसरे को तो करना ही पड़ेगा अपने डिफेंस के लिए. Then it came to groupism. Now, in the beginning of 20th century, the atmosphere of Europe was fraught with so much danger that even a minor cause would result into a disastrous incident. और ठीक वैसा ही हुआ था, मैं आपको आगे बताऊंगा. So, एक दूसरे को डर लगने लगा, विश्वास बिल्कुल खत्म हो गया. There was no atmosphere of trust. And that is why all the nations started to make groups with each other. कि अगर मेरे को कुछ हुआ तो आप मेरे को बचाएंगे, अगर आपको कुछ हुआ तो हम दोनों लड़ लेंगे. तो ऐसे कई यूरोपियन कंट्रीज ने अपने आप के हिसाब से ट्रीटी साइन की. बराबर है, उसमें जापान था, जर्मनी था, टर्की था, इंग्लैंड था, फ्रांस था, और सब सारे नेशंस थे. Then it was fierce feeling of nationalism. हर एक देश में देशभक्ति होती है, नेशनलिज्म होती है. नेशनलिज्म इज अ गुड थिंग, बट टू सम एक्सटेंट उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए. लेकिन किंग विलियम के समय में the nationalism which grew in the initial time by unification of Germany, by unification of Italy, became fierce nationalism. मतलब क्या हुआ कि मेरे को जिंदा रहने के लिए आपको मरना पड़ेगा. I want to survive, and that is why you have to die.
मेरा देश ही महान है, सब निकम्मे हैं। सो एक दूसरे देश को हेट्रेड, जेलसी, ग्रीड, एनिमिटी, ये सारी भावनाएं पैदा हुई और इसीलिए नैरो नेशनलिज्म also became one of the concept of that factor that is called World War I factor. Then it came to role of newspaper. चारों बाजू ऐसा मंजर था, नैरो नेशनलिज्म का माहौल था, dictators, kings, rulers also propagated these ideas. So obviously newspaper will write the same thing. तो न्यूज़पेपर वालों ने ये न्यूज़ बड़ा चढ़ा कर पब्लिश करना शुरू कर दिया, अच्छा दिखने के लिए, और इतना जहर उगलते थे रोज एक दूसरे के सामने। जर्मनी का न्यूज़पेपर जापान का, फ्रांस का बुरा लिखता, फ्रांस का न्यूज़पेपर जर्मनी का बुरा लिखता। इतना जहर उगलते थे कि लोगों के दिमाग में भी ये जहर घुस गया, लोगों का दिमाग भी खत्म हो गया, इतना जहर भर दिया। उसके बाद फिलोसॉफी ऑफ वॉर, बेसिकली जर्मनी इज अ लिटरेट नेशन, मैनी थिंकर्स, स्कॉलर्स लिव्ड इन जर्मनी। Unfortunate to say that during this time, in this atmosphere, many thinkers and scholars in Germany propagated war, spread out the ideas of war. तो इससे माहौल इतना बिगड़ गया कि छोटा सा इंसिडेंट दुनिया को तबाही की तरफ ले जा सकता था। वर्ल्ड का एंड निश्चित बन गया था और वो शुरुआत होने वाली थी यूरोप से। तो ये मेरा रिवीजन पार्ट था, बराबर है। नाउ विल स्टार्ट आवर 8th लेक्चर दैट इज कॉल्ड हाउ वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्टेड। नाउ व्हाट हैपेंड? ऐसा मंजर था, ऐसा माहौल था खतरनाक, बराबर है। तो ये माहौल में ऑस्ट्रिया और साम्राज्यों, राइट, ऑस्ट्रिया और सर्बिया के जो अच्छे नेशनलिस्ट थे, छोटे कंट्रीज हैं, राइट। ऑस्ट्रिया और सर्बिया जो छोटे कंट्रीज थे, उसको ये वॉर से मतलब ही नहीं था। दे डिड नॉट लाइक इन दिस पार्ट and because of friendly nation, as there was some celebration in Sarajevo, Serbia, capital city of Sarajevo, Austrian prince means king and his wife was invited. जैसे आपको मालूम है कोई देश के राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, कोई दिल्ली जाते हैं, उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, जहाँ हमारे तीनों विंग्स के सिपाही होते हैं। ठीक इसी तरह जैसे वो लोग गार्ड ऑफ ऑनर लेते लेते आगे बढ़ते थे, कई सारे नेट्स पे फोटोग्राफ है, आप देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा समय में जो इटली का एक आतंकवादी ग्रुप था, ब्लैक हैंड, जैसे हमारे कश्मीर में जश्न मोहम्मद है, अल कायदा है, लश्कर तोयबा है, जैसे जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, ठीक उसी तरह इटली में एक ग्रुप था, टेररिस्ट ग्रुप, which was called ब्लैक हैंड। उसके कई सारे बंदे थे और ऐसा ही एक बंदा जो सर्बिया का सिपाही था, वो आज गार्ड ऑफ ऑनर में खड़ा था। बाहर वाले को कैसा पता चलता कि गद्दार है, ये सिपाही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का बंदा है। तो जैसे प्रिंस और क्वीन निकले उधर, तो ये सिपाही ने, ये सैनिक ने दोनों को शूट कर दिया। दिस वॉज 1 जुलाई 1940। दोनों को मार दिया और वो भी अपने आप
रानी की हत्या हुई गार्ड ऑफ ऑनर लेते वक्त. सो सर्बिया एक्यूज ऑस्ट्रिया फॉर मर्डरिंग their prince and queen, but Austria was innocent. Okay, so sorry, Serbia was innocent. उसको तो नहीं मालूम था कि ये घटना होने वाली है, तो उसको बुलाते ही नहीं ना. तो कॉन्स्टेंटली ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे प्रेशर किया कि भाई हमने नहीं किया है, वी आर इनोसेंट, वी विल इंक्वायर इन दैट मैटर. बट नो, सॉरी, हमारे राजा की हत्या आपके देश में हुई है, मतलब आप गिल्टी हो, आप जिम्मेवार हो. सर्बिया डिनाइड, ऑस्ट्रिया कंफर्म. सर्बिया डिनाइड, ऑस्ट्रिया कंफर्म. 1 महीने तक तो मैं चली दोनों के बीच में. आपने किया है, वो बोलते मैंने नहीं किया है, मैं इनोसेंट. नहीं, आपने नहीं किया है. तो ये तुम के बीच सर्बिया ने बोला कि चलो, आप बोलते हैं मैंने किया तो किया. And that is why Austria declared war on Serbia. What was the reason? Killing their king and queen. And with this incident, World War I started. Right? Austria attacked Serbia. Serbia had a treaty with other nation. So other nation had, Serbia had a treaty with Germany. So Germany from the side of सर्बिया अटैक ऑन ऑस्ट्रिया. ऑस्ट्रिया को फ्रांस के साथ अच्छे संबंध है, फ्रांस भी वॉर में कूद पड़ा. फ्रांस का देख के इंग्लैंड भी घुस गया, क्योंकि इंग्लैंड को कितना बुरी मतलब फुलिशली कराया है. बल्गेरिया ने बेल्जियम उस वक्त कॉमन कंट्री था. बेल्जियम से किसी की दोस्ती नहीं थी, किसी की दुश्मनी नहीं थी. जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, फ्रांस और जर्मनी के बीच लड़ाई हुई, तो ऑब्वियसली बेल्जियम से गुजरना पड़ता है. तो इंग्लैंड ने जर्मनी पे हमला किया. क्यों? क्या बेल्जियम से भी गुजर रहे हो? अरे भैया, बेल्जियम को कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्या दिक्कत है? मतलब ये आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, बिल्कुल कारण गलत है. बट दे वर फाइंडिंग द कॉज ऑफ वॉर. यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? They were finding the cause of war. किसी न किसी तरह वो लड़ाई ढूंढना चाहते थे. आया समझ में? So that was the thing which was as a part of first one. Now let us read out page number 11. bottom. पूरा मैंने जो बैकग्राउंड समझाया आपको समझ में आ गया? Good. The Prince of Austria and his wife were assassinated by being shot by a member of Serbian terrorist organization. Basically ये Serbian terrorist organization नहीं था, ये organization इटली का था. इसमें गलत लिखा है. और 1 महीने तक तो तुम्हें में चले, इधर बताते 48 hours. मतलब हिस्ट्री के डेटा चेंज होते रहते हैं. राइट? ऑस्ट्रिया blamed Serbia for the involvement of this act. ऑस्ट्रिया ने सीधा ब्लेम किया सर्बिया को कि आपने ये सब करवाया है. सर्बिया तो इनोसेंट था. भैया हमने नहीं किया है, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, गुनहगार को पकड़ेंगे, सजा देंगे, आपको सौंप देंगे, लेकिन थोड़ा समय तो आपको दे दो. फिर भी ऑस्ट्रिया डटा रहा कि नहीं आपने नहीं करवाया, आप सब नाटक कर रहे हो. 1 महीने तक तो तुम्हें में चले. है समझ में? And gave an ultimatum to hand over the culprit to Austria within 48 hours. वो जो असली कल्प्रिट था वो तो आत्महत्या करके मर गया था. ऊपर से क्या नीचे लाने का कि चलो भैया हम आपको ऑस्ट्रिया को सौंपना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता. सर्बिया डिक्लेयर्ड इट्स इनोसेंस इन दिस मैटर कि भाई हम इनोसेंट है यार, हमने कुछ नहीं किया है. राइट? सो विदाउट लिसनिंग टू एनीथिंग फ्रॉम सर्बिया,
That is why you have to pay for it. So Austria declared war on Serbia, and this is how the First World War started. Right? आया समझ में? बिल्कुल छोटे से कारण के हिसाब से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ. राइट? सो दिस वॉज अ सिंपल स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. अब ये कहां खत्म होने वाला था वो तो किसी को मालूम नहीं था. कितना नुकसान होने वाला था, इसका अंत क्या होने वाला था, कोई किसी को मालूम नहीं था. ऐसा कुछ नहीं. So let us study about First World War, page number 12. In First World War, 24 nations supported Allied nations. मैंने बोला था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सारे ग्रुप बन चुके थे, ग्रुपिज्म हो गया था. तो एक साइड को एक्सिस बोलते थे, दूसरी साइड को एलाइड बोलते थे. एलाइड का हेड इंग्लैंड और फ्रांस था, एक्सिस का हेड जर्मनी था. नाउ व्हाट हैपेंड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? 24 nations supported the allied nations and 4 nations supported axis nation. Right? Initially Germany made a noteworthy victories in Europe, क्योंकि उसने आर्म्स फाइट किए थे, मिलिट्री ट्रेन की थी. तो शुरुआत में जर्मनी खूब आगे बढ़ गया था, खौफ बैठा दिया था यूरोप में. एक समय तो ऐसा आया कि फ्रांस और इंग्लैंड भी डर गए थे उससे कि जर्मनी क्या कर रहा है. जर्मनी वाज मार्चिंग अहेड. समझ में? It fought many submarine wars and destroyed the ships of Allied nation. क्योंकि किंग विलियम केसर ने आर्मी नेवी सब कुछ ट्रेन किया था. उसमें एयरफोर्स नहीं था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एयरफोर्स नहीं था. आर्मी और नेवी को बहुत मस्त तरीके से ट्रेन किया था. Many soldiers and civilians died because of tanks and poisonous gases. मैंने अभी आपको बताया लेक्चर की शुरुआत में, आप याद करो कि वॉर में कभी भी किसी की जीत नहीं होती है, हमेशा वॉर में हार होती है, बर्बादी होती है. वॉर में कभी किसी की जीत नहीं होती, कभी कोई नहीं जीत सकता. क्योंकि वो जीत के लिए भी जो जीता है ना, उसको भी उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती होती है. इसीलिए तो वी आर अवॉइडिंग वॉर्स. वो जीत की भी बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं. And mankind loves peace, not war. Do you understand, children? In 1970, the revolution, Russian Revolution started. वो मैं आपको जब मैं वो टॉपिक में जाऊँगा ना, तब मैं आपको डिटेल में बताऊँगा. अभी एक लाइन मार्क कर लो. So Russia withdrew from the war. Why? We'll talk later on. Germany was very strong at that time. बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका था. It managed to drown American ship called Lusitania. अमेरिका की जो पैसेंजर शिप थी लुसिटिनिया, उन्माद में, जुनून में, अमेरिका वाज आउट ऑफ वॉर, इसका कोई लेन देन नहीं था. लेकिन जर्मनी ने जब ये शिप पे हमला किया और 150 के करीब अमेरिकन सैनिक मारे गए, तब अमेरिका ने जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर किया कि भैया आप मेरे को क्यों खदे रहे हो, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर भी आपने हमारा नुकसान किया तो इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी. जब अमेरिका वॉर में ज्वाइन हुआ तो उसने एलाइड की साइड ली. तो जो जर्मनी ने फ्रांस और इंग्लैंड को काफी हद तक वीक कर दिया था, वो आज स्ट्रॉन्ग हो गए.
क्योंकि मैन, मटेरियल, मनी, सब न्यू फ्लो, एक नया फ्लो अमेरिका की तरफ से आने लगा। एंड नाउ फ्रांस, इंग्लैंड एंड अमेरिका, all three joined hands against Germany. उसके बाद रशिया, वो बाद 147 soldiers died. Consequently, America joined the Allied nation for the war in April 1970. With that countries like Panama, Greece, Cuba, China and Sia, इसमें से कई छोटे बड़े हैं, कई छोटे राष्ट्र हैं, कई बड़े राष्ट्र हैं, joined the Allied nations. Thus, the Allied nations became strong. ऐसा समझ में? German army could not withstand American troops. अमेरिका भी और काफी नहीं आता, उसने दिखाया नहीं था, और जर्मनी 3 साल से लड़ रहा था, तो थकान भी महसूस होती थी। अमेरिका नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो फिर गैप तो दिखाई देता है। The whole nation, the position of the war changed. Bulgaria in September 1980, Turkey and Austria in October 1980 joined the Allied nations. आहिस्ता आहिस्ता सब अलाइड की शिप में बैठने लगे, और एक साइड जर्मनी बिल्कुल अकेला पड़ गया था। The general leader William Kaiser, who was called a war mongo, was responsible for the war. देखा कि नाउ टाइम कम हो गई है, सारे फोर्सेस जर्मनी के अगेंस्ट में है, अब हमारा भैया कुछ नहीं हो सकता, वो पिछली गली से खिसक गया, मतलब वो भाग गया जर्मनी को अपने हाथ पे छोड़ के। तो इस वक्त ऐसा मंजर हुआ कि आज जर्मनी का कोई हेड नहीं था, जर्मनी बिल्कुल अकेला पड़ गया था, कोई हेड नहीं था। एंड जर्मनी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट वॉर, क्योंकि झगड़ा ऑस्ट्रिया और सर्बिया का था, उसको निपटाने देते, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जर्मनी ने किया था। तो ये तीनों जो नए राष्ट्र मिले थे, इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका, उन तीनों ने मिलकर जर्मनी को दबोच लिया। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, जर्मनी भी हार। The German leader Wilhelm Kaiser abdicated the throne and ran away. जर्मन प्रजा को अपने हाल पे छोड़ के वो भाग गया। लोगों का विश्वास खो रहा था, भरोसा खो रहा था। ऐसा समझो, Germany surrendered to Allied nations and signed a ceasefire. Ceasefire मतलब treaty. And the war came to an end. तो ये पूरा ब्लूप्रिंट वर्ल्ड वॉर वन का था। उसके बाद क्या हुआ? वॉर के बाद का कॉन्सिक्वेंसेस क्या था? वो हमारा सेकेंड टॉपिक है, द इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लेट अस सी डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटीरियल। उसका तो हिसाब लगाना ही मुमकिन नहीं था। हर एक देश ने जो कुछ भी कमाया था सब कुछ खत्म हो गया। कई देश में दिवालिया जैसी हालत हो गई थी। कितने इंसान मरे थे, आज तक उसका सच्चा नंबर बाहर नहीं आया है। बहुत भारी मात्रा में नुकसान हुआ था, बहुत। Approximately 6.5 crore people took part in war. At least 1 crore people died and 2 crore were injured. And about 70 lakhs were rendered permanently handicapped.
किसी का हाथ टूट गया था, किसी का पैर टूट गया था, कोई अपाहिज बन गया था, कोई अंधा बन गया था, केवल परमानेंट हैंडिकैप। Number of people died because of starvation and other forms of killings and epidemics. जैसे अभी कोरोना की महामारी है, वॉर के बाद ऐसी महामारी फैली थी यूरोप में। वॉर के बाद कई लोगों की जान ये महामारी में गई थी। अभी आप हम देख रहे हैं ना कोरोना में कितने लोग बेचारे मर रहे हैं, हॉस्पिटल्स का आप मंजर देख रहे हो, सबका मंजर, घर का मंजर देख रहे हो, किसी के मुंह पे कुछ दिखाई नहीं देता है। हम सब अभी प्रार्थना करते हैं भगवान कि भगवान ये समय समाप्त करो प्लीज, थक गए, डर गए हम, तो ये तो महामारी में हम डर गए। तो देखो उस वक्त का मंजर क्या होगा, उस वक्त का माहौल क्या होगा, क्योंकि वॉर में तो सब खेदार मैदान हो गया था, कोई चीज सलामत नहीं थी। कई सिटी, पूरे सिटी के सिटी सैनिकों ने जला दिए थे। कैसी लूटपाट मचाई होगी, कितने बच्चे अनाथ बने होंगे, कितने बच्चे भी बने होंगे, सोच के भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 पे कई सारी मूवीज भी है, शायद आपको टाइम मिले आप देखना। कई सारी मूवीज बनी है, बिकॉज वॉर इज नेवर वेलकम इन द सोसाइटी। वॉर ऑलवेज ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन, कुछ अच्छा नहीं कर सकते। Epidemics that broke out after the war. The total expense of war was astonishing. पूरी देश की इकोनॉमी समाप्त हो गई थी, खत्म हो गई थी सब कुछ। Social change. During the war, majority of the band of all the nations were on the war front. Male members तो war लड़ने गए थे, अपने अपने देश अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते लड़ते कई लोग शहीद हो गए थे। डेड बॉडीज भी हासिल नहीं हुई थी, और इसकी वजह से जो घर की सारी जिम्मेवारी थी वो लेडीज मेंबर पे आ गई थी। जैसे अभी हम देख रहे हैं कई परिवार साफ हो जाकर, एक्सक्यूज मी लिटिल बिट ऑन इमोशन, मैं वॉर की बात नहीं कर रहा, मैं अभी वॉर का बढ़ाते बता रहे आपको, मैं आज की परिस्थिति का सोच रहा हूं। जैसे आज बनता है, माँ बाप दोनों गुजर जाते हैं, चले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाते हैं, तब लोग भगवान कैसे भरोसा कर जाते हैं। तब एक सेकेंड ऐसा लगता है कि देयर इज नो एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इससे भी भयानक हालत उस वक्त है, राइट? सो टोटल सोसाइटी वॉज डिस्ट्रक्टेड, टोटल सोसाइटी वॉज डिस्ट्रक्टेड, नोवेयर टू नोवेयर व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा था कुछ मालूम नहीं था। ड्यूरिंग द वॉर, since majority of men of all the nations were on the war front, women shouldered the responsibility of the family and
occupation. They stepped out of their homes and successfully took the responsibility of different professions. आज भी ऐसी हालत है, कई घर में से कमाने वाले चले गए, क्या होगा आगे जाके मालूम नहीं, कैसे वो बच्चे लोग मैनेज करेंगे मालूम नहीं, लेकिन शो मस्ट गो ऑन. Consequently, they became self-independent. माँ को काम करना पड़ा, बच्चे का परवरिश करना पड़ा, घर की जिम्मेवारी उठानी पड़ी, कमाना पड़ा. Consequently, the demand of women to exercise a franchise was raised. During the war, the production of the things of the basic necessities reduced, क्योंकि पूरी इकोनॉमी खत्म हो गई थी, सब कुछ तबाह हो गया था. तो कैसे कोई काम कर सकता है? तो इसीलिए सब कुछ जब केदार मैदान हो गया, तब जाके ये मंजर थोड़ा सा कम हुआ था, रुका था. There was total destruction in economy. मैंने अभी आपको बताया था, पूरा शहर बर्बाद हो गया था. कई मूवीज आप देखो, जीतते हुए देश के सैनिक पूरा शहर जला डालते थे, लोगों की कत्लेआम करते थे, लोग अपनी जान बचाने के लिए क्या नहीं करते थे. They were totally helpless. During the war, the production of basic things and necessity reduced. So problems like scarcity, unemployment, starvation मतलब भूख मरा. एक रोटी के लिए लोग तड़प रहे थे, खाना नसीब नहीं होता था. स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, जो बचे कुछ कारखाने थे उसमें मजदूर पगार मांगते थे, मालिक कहां से पगार निकाले? तो ये सब मंजर बनने लगा. रेस क्या है? People suffered a lot and the children's condition was pathetic. Pathetic का मतलब poor. Right? क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों की हालत खराब थी. जो छोटे बच्चे थे, जिसने अभी कुछ नहीं देखा था, उसकी सबसे ज्यादा हालत खराब हो गई थी. That is why it was a severe thing from which Europe passed. कई सालों तक ये चला, क्योंकि 5 years तक वॉर चला, from 1914 to 1919. 5 साल तक जब वॉर चला, तो उसका रिएक्शन 10-15 साल तक तो रहेगा. सब देश को खड़े होने में, अपना स्टेज बनाने में 10-15 साल तो लगते. 5 साल का वॉर, 10-15 साल की मेहनत, आप तो सोचो यूरोप कितना पीछे गया. क्यों? इंसान को एक जुनून था कुछ कर बताने का, बट इट वॉज नेगेटिव, और ये नेगेटिव जुनून ने पूरी दुनिया को खत्म कर दी थी. एंड दैट इज व्हाई यू सी इट इज सेड बाय हिस्टोरियंस कि यूरोप तकरीबन 100 साल पीछे गया. सो दिस वॉज द पार्ट व्हिच आई टॉट यू अबाउट.
Now, most important one topic is that is Treaty of Versailles. Very interesting topic and Russian Revolution. That will take in next lecture. Okay, children? So now is your time to take your homework. Come on, children. Homework. Why Austria declared war on Serbia? 2. Write a short note on World War One. Write a short note on World War One. 3rd, what social changes took place in Europe after World War One. Right? So these are the 3 questions of your homework. Why Austria declared war on Serbia? Write a short note on World War One. First World War. Sorry. And 3rd is, what social changes took place in Europe after World War One? So I hope you will enjoy this lecture. We will meet in new lecture in 9th. Till then, children, take care. Take care of your family members. Goodbye.